आजकल लोग बोलते हैं कि जो जिम है इज दैट ओनली फॉर यंगस्टर्स या किसी भी एज के लोग जिम जा सकते हैं बिकॉज दैट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू लूज वेट. सो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. मेरे हिसाब से ना वो एक एंटी एजिंग क्लिनिक है. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज 30s के बाद क्या होता है ना कि आपकी मसल्स वीक होने लग जाते हैं, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी इट स्टार्ट्स डिपिंग विद एज. तो उसके बाद एक्चुअली हमें वर्कआउट की, एक्सरसाइज की नीड ज्यादा होती है. ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो नॉट अ बिग फैन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, सो दिस इज माई स्ट्रगल टू कोप अप विद दैट प्रोटीन लेवल. सो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. वी जस्ट नीड सम गुड फूड कॉम्बिनेशंस. Okay. To all everybody whoever is listening, at least 20 minutes for your own life. Exactly. 20 minutes, maybe that will save you from so many medicines, so many problems in the later age. तो मुझे क्रक्स में एक चीज बताओ, कोई एक चीज हम करें और हम सब फिट हो जाएं. सिर्फ एक चीज अगर आप अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर सकते हो तो वो है. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਐਂਡ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਵਿਦ ਹੀਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ. ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ. वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू ऑल लव एंड आई थिंक वी ऑल लव. हम सब पतले होना चाहते हैं, है ना. हम सब खाने के बारे में ऐसा ऐसा रिसर्च करते हैं, इतनी सारी चीज़ें ढूंढते हैं कि कैसे हम वेट लूज करेंगे. सो आई हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस टुडे. तो आज मेरे साथ हैं शिवांगी खन्ना, मील माइंड्स डाइट क्लिनिक मेडिकल एनक्लेव से. शी इज गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड आई एम टेलिंग यू शी इज रैंक्ड 3, like 3rd in all India rank. And welcome to Unfiltered with Heer. Thank you so much. Hi everybody, I'm Shivangi Khanna, a registered dietitian. I have over more than 8 years of experience in this field in clinical nutrition, and I am trained at Tata Memorial Hospital in Mumbai in cancer nutrition, and I'm also trained in IBS management by Monash University. I'm a certified diabetes educator and also a lactation counselor. 3 years back, I started my own setup, my own clinic named Meal Minds, the Diet Clinic by Shivangi Khanna. Perfect. So शिवांगी, इतने सारे डाइट क्लिनिक्स हैं और इतने सारे डाइटिशियंस हैं हमारे सिटी में, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड. How are you different than anyone else? Since I've started working, that is around 8 to 9 years back, तब से अब तक it's not only about weight loss. So we have been seeing all kind of medical cases. So for me, it is not only about diet plans. It is the evidence-based nutrition, food that actually cures people, that heals people. Right. And sustainable lifestyle changes. So still there is lot to learn, lot to achieve. It's not a destination yet. It's still a journey. So I'm really happy. I'm a part of this fraternity and I'm able to help the people out there. So yeah. Very nice. I mean, I'm honored. And बिल्कुल सही कहा, कभी भी आप एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाते because final destination तो मुझे नहीं लगता कभी आता है. One always keeps learning, Exactly. right? And it goes in every profession. Yes. I'm sure I'm learning a lot of things. All right. So Shivangi, my first question. Like, you know, the internet is full of knowledge about diet. We have dietitians all over. आप भी हैं यहाँ पे. फिर भी ऐसा क्यों है कि आज के टाइम पे everybody is overweight? Today, see, knowledge is not the problem. Right. With just one click, you have every information in your hand. तो मतलब कुछ भी chat GPT ले लो, AI ले लो, Google ले लो, anything and everything is just available at just one click. So knowledge की problem नहीं है. The actual problem is knowledge overload. Right. And also the quick fix diets, the shortcuts people want to take. Let me be very honest, सबको shortcuts चाहिए. Right. मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम बस 1 महीने में ना मेरा 7 kg लूज करवा दो या फिर मैम सिर्फ 1 महीने में मुझे ये रिजल्ट चाहिए जस्ट बिफोर माय वेडिंग. सो जब तक हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे तब तक हमें वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते. सो नॉलेज का इशू नहीं है. द रियल प्रॉब्लम इज कि वी नीड टू बी कंसिस्टेंट विद आवर बेसिक्स फर्स्ट. That's the truth. अच्छा, cheat meals के कॉन्सेप्ट में आप बिलीव करते हो? Honestly, I do not like this word cheat meal. मतलब आई थिंक कोई भी जिम जा रहा है या डाइट कर रहा है, वो संडे इज देयर फेवरेट डे बिकॉज दे गेट टू ईट राजमा चावल और पिज्जाज और व्हाटएवर दे वांट. सो आई थिंक I personally used to work only for cheat meals. Yes. So the first day, you know, clients come walking to me and the first thing even before the assessment that they ask is कि cheat meal होगा मैम, हम पहले वो बता दो. So then what I try to explain them is I personally don't like this word cheat meal because इससे the food actually sounds like something wrong is there, something guilty you have to be off. But Right. and food जो है ना उसके लिए कभी साथ में guilt नहीं आना चाहिए.
मतलब रात को 12 बजे अगर हम आइसक्रीम टब खा रहे हैं तो बिना गिल्ट के खा सकते हैं? हाय नहीं, that's not what I mean. So what I mean is कि जो भी आप चीट मील, आपको जो भी चीज़ पसंद है, चाहे वो आइसक्रीम टब है या किसी को भी कोई स्वीट्स या कुछ जंक, whatever they like, I also eat out, right? It's Right. not that people ask, मैम आप कभी कुछ नहीं खाते हो क्या? मैंने कहा मैम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हाँ. So you have to be social in today's world. You have to interact with people. So food is the medium, right? Right. So but ये है कि how much to take and what combination to take. तो वो कितना मॉडरेशन में हम ऐड करते हैं. प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, जब मंडे टू फ्राइडे आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे होते हो, सूप्स, सैलेड्स एंड टू मच रिस्ट्रिक्शंस, टू मच डिटॉक्स, एंड फिर आता है सैटरडे. इट इज सैटरडे, ओके, सो आई विल ईट बर्गर्स, पिज्जाज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सब कुछ खाएंगे आज. But our body scientifically cannot process all this. So whatever you like, my advice to everybody is कि जो भी आपको चीज़ पसंद है उसको अपने रूटीन में एक बहुत हल्के से मॉडरेशन में फिट कर लो, ताकि आपको उस चीज़ की क्रेविंग्स ही ना हो. अच्छा, थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खा लो, थोड़ी थोड़ी खा लो. मतलब 80% ईट योर रूटीन होम मेड मील्स. राइट. तो जब आप 80% क्लीन ईटिंग करते हो ना, तो 20% ऊपर नीचे वोंट इफेक्ट. बट हाँ, अगर आप 20% ही क्लीन करते हो, बाकी 80% खराब करो, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट. सो दैट इज व्हाट मैटर्स. सो नो वन कैन बी 100%, बट एटलीस्ट अगर हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को इम्प्रूव करें एंड 80% अगर हमारी डाइट बहुत क्लीन है, तो कभी कभार कुछ खाया गया वोंट हार्म. सो यू मीन टू से दैट, कमिंग बैक, दैट आइसक्रीम टब एक दिन में नहीं, 2 हफ्ते में खत्म कर सकते? No, whatever you like. Yes. So basically, you can have your ice cream, whatever you like. You can just think of good recipes also of the ice creams that you can make at home. Maybe you turn out to be a really good chef doing that. Okay. So anything can happen. तो बस ये है कि एक moderation is the key. Right. तो जब तक हमें वो moderation नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. करेक्ट, परफेक्ट. अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, दैट यू नो आजकल लोग बोलते हैं कि जो जिम है, इज दैट ओनली फॉर यंगस्टर्स, या किसी भी एज के लोग जिम जा सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू लूज वेट. सो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. जिम जो है सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिम को बोलते हैं एक यूथ क्लब है ये. इट इज़ नॉट अ यूथ क्लब. मेरे हिसाब से ना वो एक एंटी एजिंग क्लिनिक है. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज 30s के बाद क्या होता है ना, कि आपकी मसल्स वीक होने लग जाते हैं. आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी इट स्टार्ट्स डिपिंग विद एज. तो उसके बाद एक्चुअली हमें वर्कआउट की, एक्सरसाइज की नीड ज़्यादा होती है. मसल्स जो है ना, दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस. मतलब आप उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होते हैं. एंड जितना ज़्यादा उसको अंडर यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो, तो वो और वीक होने लग जाते हैं. सो नाउ इट्स इन योर हैंड्स कि अगर आप 50-60 ईयर्स के हो और अगर आप अब भी लिफ्ट की जगह पर स्टेयर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वेयर आर यू लैकिंग, और ऐसा आप क्यों कर रहे हो, राइट? सो उसके बाद क्या होता है ना, आई हैव सीन माई क्लाइंट्स इम्प्रूविंग विद रेजिस्टेंस वर्कआउट. तो दिस इज पॉसिबल. और ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 2-2 घंटे जिम में बिताने हैं. इट्स नेवर लाइक दैट. जस्ट 2 to 3 सेशंस अगर आप एक वीक में कर लेते हो, जस्ट ऑफ 30 minutes ईच, तो वो भी बहुत इनफ है. एटलीस्ट यू विल बी इंडिपेंडेंट. यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी इन योर ओल्ड एज. दैट इज व्हाट एक्चुअली वर्कआउट इज ऑल अबाउट. तो जिम इज नॉट इक्वल टू बॉडी बिल्डिंग. इट इज एक्चुअली टू मेक यू इंडिपेंडेंट. परफेक्ट. आई मीन आई कंप्लीटली अग्री विद यू. दूसरा एक चीज, जब हम इंस्टाग्राम आजकल स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में, अगर इफ यू टॉक अबाउट डाइट्स एंड एवरीथिंग, इज इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन कॉन्कॉक्शंस, है ना. इवन सेलिब्रिटीज अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं. तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ इट हेल्प्स? सी, इन्फ्लेमेशन इज इन द हाइप, आई एग्री. या तो बट ये इन्फ्लेमेशन कुछ नई चीज़ है ही नहीं है. हाँ. सो दिस इज जस्ट बिकम न्यू, एक न्यू ट्रेंड की तरह आया है. बट इन्फ्लेमेशन एक बहुत एक नॉर्मल सा एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का. ओके. जब भी कोई इंजरी होती है या जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में होती है, तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी देती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल. बट ये जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है, देन इट लीड्स टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, अर्थराइटिस एक्सेट्रा. तो वो सब कुछ जो है होने लग जाता है अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो. अच्छा. अब आती है बात कि इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल. हाँ. जैसे आपने बोला करेक्टली कि कॉन्कॉक्शन बना रहा है कोई कि हाँ ये लिया मैंने एंड आई लॉस्ट 10 kgs इन अ मंथ. सो दैट इज नॉट पॉसिबल, पहली बात. सो डोंट, दीज आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स, कुछ ऐसा नहीं. बट
एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी फूड एंड व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड. सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेटरी चीज दैट आई नो इज शुगर, राइट. रिफाइंड शुगर. तो सबसे पहले तो वो है सबसे इन्फ्लेमेटरी. सेकेंड कम्स योर ट्रांस फैट्स, the bad oil that we are using that is coming in our packaged products, all your processed food items, Right. all the refined carbohydrates, the maida. Yeah. So all these things ये है inflammation. यहाँ पे है ना हम सबके पास वो इजी तरीका, एक शॉर्टकट टू हैव कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. पहले 500 कैलोरी खाएंगे, उसके बाद 500 और लेंगे टू डाइजेस्ट दैट. Exactly. So ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद में एक कोक नहीं जब तक पियेंगे ना तो डाइजेस्ट ही नहीं होता. हाँ, आई नो, है ना. हाँ, तो वो एक्चुअली एक मिथ है. रादर इट कम्स विद सो मच ऑफ एम्प्टी कैलोरीज. इतना शुगर इनटेक इसके अंदर जाता है. एंड अब तो देयर हैव बीन रिसर्चेस विद सेज कि देयर एक्चुअली रिस्क ऑफ कैंसर विद इट. Yes. So inflammation, coming back to it, तो उसमें there is a lot of anti-inflammatory foods that you can add, which is very simple, that we all know. Simple whole grains, pulses, nuts and seeds, omega-3, ये सब anti-inflammatory हैं. अच्छा. तो इसको जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे तो वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. Yeah. तो इट्स नॉट नेवर अ कॉन्कॉक्शन और सम काढ़ा विल सम मैजिक काढ़ा विल गिव यू एंड आपको एंटी इन्फ्लेमेशन वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ लाइक जस्ट पॉप्ड आउट आपके आंसर से ही कि क्या होता है ना आजकल जब हम बाहर जाते हैं या काम कर रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ और हम खाना खा रहे हैं अपना, सपोज आई हैव मेड माई ओन मील, तो अगर हम घर का खाना खा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि आप डाइट कर रहे हो, है ना. मतलब जस्ट बिकॉज हम बाहर से नहीं खा रहे डज नॉट मीन हम डाइट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो डाइट इज नॉट अ पनिशमेंट. पहले तो हमें Yeah. ये समझना पड़ेगा कि डाइट इज नॉट अ पनिशमेंट, कि जो आप कुछ भी अगर आप अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हो तो आप डाइट कर रहे हो. हाँ. सो इट्स नेवर लाइक दैट. आप अपने रूटीन में ही डाइट कर रहे हो. आप जो घर पे खाना खा रहे हो उसको ही इतना अच्छा और बैलेंस्ड रखो कि आप हमेशा डाइट पे हो बिल्कुल. और कभी कभी आप बाहर का. सो जब एक्चुअली हम गिल्ट फ्री बैलेंस करना सीख जाते हैं ना तो हमें वो चीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती. अच्छा, बहुत बड़ा एक ये भी क्वेश्चन रहता है जब डाइट या बैलेंस डाइट की बात आती है, प्रोटीन का. प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो. यस. सो वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन इंटेक कैसे बैलेंस करें? यस. सो पहली बात तो ना प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं भूलना है. आजकल हम एक ही चीज़ बोल पा रहे हैं कि प्रोटीन बढ़ाओ अपनी डाइट में, एंड कार्ब जीरो कर लेते हैं आजकल. एंड गूगल डाइट्स तो वैसे ही यही बताता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स वी डोंट नीड इट, तो आप उसको जीरो कर लो. बट जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हाइड्रेशन, ये हम स्कूल में पढ़ते थे. हाँ. सो वो सब ना हर किसी को चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसको कौन सी डिजीज है, वो कौन से एज ग्रुप में है, क्या एक्टिविटी है, डज नॉट मैटर. बट उसका प्रपोर्शन बदलता है एंड दैट ओनली डिपेंड्स दैट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन फॉर दैट. And coming back to the vegetarian protein sources, so very important question, and many people, honestly, I'm also not a big fan of non-vegetarian food. So अमृतसर में रह के भी यार. Yeah, so this is my struggle. So to complete, to cope up with that protein level. हाँ. So कुछ इतना difficult नहीं है. We just need some good food combinations. Okay. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बहुत फेमस है ना, ब्रेड बटर खा लिया संडे को, हाँ. या बन बटर खा लिया. तो चाय के साथ. एग्जैक्टली, विद चाय, नेवर टू फॉरगेट दैट. तो वो जो चाय के साथ जो ब्रेड बटर, बन बटर, एंड देन वी से हमने तो घर का ही खाया. बिल्कुल. सो वो उसको जब हम स्विच करके, एंड इफ वी कैन स्विच इट विद अ बेसन चीला और अ मूंग दाल चीला विद कर्ड, तो हो गया हाई प्रोटीन. कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था ना. हाँ. उसके अलावा लंच में सिंपल दाल राइस, राजमा राइस, चने राइस, जो हर किसी के घर में बनते हैं. एंड ये जो राइस और दाल, पल्सेस, लेग्यूम्स प्लस ये कार्ब्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. मतलब इसमें हर तरह के अमाइनो एसिड्स बैलेंस होते हैं, एंड इसमें लाइक इट एक्चुअली मैचेस अप टू द एनिमल प्रोटीन. तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन हो तो यू विल लैक दैट थिंग. लंच में आपने वो दाल राइस वगैरह ले लिया, रात को यू कैन ऐड सोया, पनीर और विद सम मिलेट रोटी, यू कैन हैव इट इन डिनर. स्नैक्स में यू कैन हैव पीनट्स, चना सैलेड हो गया, स्प्राउट सैलेड हो गया, द छाछ, द बटर मिल्क इन समर्स, that we can add sattu. So there are so many n number of options. And also if you are physically active,
तो there is no harm in even using any good quality protein supplement. We Right. can do that, but always do that only after consulting someone. अच्छा, इतने सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज तो आपने बता दिया, बट आजकल एक और बहुत बड़ा इशू है जब लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, दे डोंट हैव टाइम फॉर डाइट, दे डोंट हैव टाइम टू कुक, दे डोंट हैव टाइम टू वर्कआउट। उसका क्या इलाज है? डंडा मार के भेजते हो? Exactly. तो घर घर का क्वेश्चन है ये, मेरे घर का भी क्वेश्चन है ये, हाँ. कि बिकॉज बीइंग जो बिजनेस फैमिलीज हैं या ऑल द क्लाइंट्स ऑल्सो हु कम टू मी, कि मैम जब वर्कआउट की बात आती है ना, डाइट का सब समझ लेंगे, उसके बाद व्हेन इट कम्स टू कि आपको 30 मिनट्स वर्कआउट करना पड़ेगा, मैम टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम कहाँ से लाएं? सो दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स टू मी. सो सी, अब मेरा उनसे एक और क्वेश्चन है कि टाइम नहीं है या प्रायोरिटी ही नहीं है. एग्जैक्टली, हाँ. सो प्रायोरिटाइज हम जब तक नहीं करेंगे उस चीज़ को, आज यही इंसान अगर कल को कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम होती है एंड डॉक्टर स्ट्रिक्टली आस्क्स हिम और हर कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है या फिर आपको 30 मिनट्स करना ही करना है, तो हम टाइम निकालेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स. हम ऑफ कोर्स निकालेंगे, हम टाइम बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि भाई डॉक्टर ने बोल दिया, नहीं तो दिस और दैट सिचुएशन है अब तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी. हमारे पास नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करने के लिए भी टाइम है, हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, और वो घंटा 2 घंटा में पता ही नहीं लगते. तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रही हूँ, वी डोंट नीड एनीथिंग. हमें 2 घंटा किचन में नीड नहीं है, हमें 2 घंटा जिम की भी नीड नहीं है. सिर्फ 20 मिनट्स इन आर डेली रूटीन अगर आप निकाल सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू लाइक डांस, एरोबिक्स, जिम, वट एवर यू लाइक. आप ऑनलाइन सर्च करो, आजकल तो हर तरह के वीडियोस अवेलेबल है. सो जस्ट उस चीज़ में 20 मिनट्स आप निकाल रहे हो, अपनी डाइट को क्लीन रख रहे हो, होममेड खाना खा रहे हो. आई थिंक इतना ही है, और इतना ही पता नहीं क्यों इतना टफ लगता है हमें. So I have a friend, she's a senior to me and she's I think 52 or 53 and she's super fit और Oh. बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं रेगुलरली, लाइक हार्डली कोई दिन होता है जिस दिन वो वर्कआउट मिस करें. तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर कि यार इतना बिजी हो जाती हूँ मैं कभी कभी कि मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं लगता है. एंड देन शी गेव मी अ वेरी गुड आंसर विच आई थिंक पीपल शुड नो. सो शी सेड, इमेजिन ही इफ यू हैड अ बेबी राइट नाउ, सो आप उस बेबी के लिए जितने मर्जी बिजी हो गए, टाइम तो निकालोगे ना. सो राइट नाउ यू आर योर बेबी, आप अपने बेबी खुद हो, तो आपको अपने लिए वो टाइम ज़रूर निकालना है. सो वो बोले कि मैं अपने आप को सारी लाइफ इस तरह से मोटिवेट करती आई हूँ. So I think this is a nice way to. That's a perfect example. Yeah. Because जब आप पर कोई चीज़ है, you are already in that situation, तब भी तो हम कोप अप करते ही हैं ना? करते ही हैं, हाँ. तो हम टाइम निकालना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो इसको बोल कर नॉर्मलाइज करना आई थिंक हमें अब बंद कर देना चाहिए. टू ऑल एवरीबडी whoever is listening, at least 20 minutes for your own life. Exactly. 20 minutes, maybe that will save you from so many medicines, so many problems in the later age. अच्छा, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, फेस्टिव सीजन आ रहा है यार, दिवाली, मिठाइयों को मना नहीं कर सकते, कहीं जाते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टीज, डिनर्स, इतना कुछ होता है. हाउ शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस सीजन? Yes, so festivals means all food, हाँ. celebration, family, यही होता है. And being from अमृतसर, तो We breathe festivals, food, मुझे लगता है. yeah, so We breathe. festivals literally mean food. तो यही है. But actually इसमें क्या है? Now there are some points or some tips I would like to share. हम हर इंसान को जाकर मना भी नहीं कर सकते कि हम डाइट पे हैं, ठीक है? So now what are the things we should keep in mind? Yes. So the first thing is don't starve yourself before going to any function or party. तो Okay. जब हम starve करते हैं कि हम पार्टी पे रात को जाना है, लंच मिस कर देते हैं. So वो वाला काम जब हम करते हैं, then we binge there. हाँ, तो ज़्यादा खा लेते हैं एकदम से. Exactly. तो वो चीज़, पहली चीज़ उसको हम ठीक कर सकते हैं. Okay. So that we should have at least some of the food before going, or we have a plate of salad, some sprout salad, कुछ ना कुछ, so that your stomach is at least half filled. Okay. And after that, second आता है आपका वहाँ पर जाकर what options you take. हाँ. So choose for healthier, high protein options. Choose for lighter food. मतलब and क्या कर रहे हैं, गुलाब जामुन ना खाएं वहाँ पे? खाओ, मॉडरेशन में खाओ ना. टेस्ट देख लो किसी की प्लेट में से हाफ गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन को 3 मत खाओ कि कल से फिर से हम लोग जा रहे हैं. ये तब होता है कि जब हमें पता है कि मंडे टू फ्राइडे हम सिर्फ सूप्स पे ही हैं, इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट को बनाना ही नहीं है. हाँ. डाइट इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड, होममेड, जो घर पे. मैं अपने किसी क्लाइंट को नहीं बोलती कि आप लोग 3 दिन डिटॉक्स पे चले जाओ, आप 3 दिन जो है ये फास्टिंग पे चले जाओ बिकॉज आपने फंक्शन अटेंड किया. करेक्ट. So this is never. I always tell them, come back to your routine. Have your normal food now.
ठीक है. सो कमिंग बैक टू द थर्ड थिंग कि आपको अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना है. हाँ. व्हेनेवर इट इज अराउंड द फेस्टिवल सीजन, सो हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखो, अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, चूज वाइजर ऑप्शंस, हेल्दियर ऑप्शंस, डोंट स्टार्व योरसेल्फ, एंड अगर हो सके तो 15-20 मिनट वॉक अगर हो जाए तो सबसे बड़ा बोनस है. परफेक्ट. तो आपने इसमें डिटॉक्स की बात करी थी, तो आजकल बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स डाइट्स भी Yes, हैं, yes. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, या डू दे रियली वर्क? डिटॉक्स ना कोई भी ड्रिंक कर ही नहीं सकती है. अच्छा. हाँ. सो डिटॉक्स करता है हमारा लिवर और किडनी, तो अच्छा. उसको करने देते हैं ये काम. सो बेसिकली डिटॉक्स इट्स अगेन गिमिक. कुछ नहीं है इसमें हाँ. कि एक ये ग्रीन टी पी लेंगे तो कल का जो भी खाया हुआ था ना वो सब पच जाएगा. वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने कल खाया था, आज ग्रीन टी पी लिया, इट्स ऑल ओवर नाउ. अमृतसर में है ना कि आप 2 कुलचे खा लो सुबह, उसके बाद ग्रीन टी पी लो, ग्रीन टी पी लो, सब ठीक हो हाँ. जाएगा. तो मेरे पास भी आते क्लाइंट, मैम हमने संडे को ना चीट किया था, क्या लिया था, 2 कुलचा खाया था एंड उसके बाद में ना पर हमने ग्रीन टी पी ली थी. हाँ. एंड आई डोंट नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू देम, यू नो, इंस्टेड ऑफ लाफिंग, बिकॉज एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि डिटॉक्स ड्रिंक से हमारा सब कुछ जो किया हुआ है वो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा. जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है ना, जो क्विक फिक्स चीजें हैं, पहले तो उनको छोड़ना पड़ेगा. तो आपको डिटॉक्स हमें क्यों इतना एक्साइट करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा करने से हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा. Correct. है ना, कि कुछ एक शॉर्ट टर्म हमें अगर कुछ मिल जाए तो उससे हमारा, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है. सो यू हैव टू आउटग्रो ऑल दोज थिंग्स. इट्स नेवर पॉसिबल. आपको एक सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप हमेशा फॉलो कर सको उसकी तरफ ध्यान देना. यू हैव टू इन्वेस्ट नॉट इन योर डिटॉक्स ड्रिंक्स, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर लाइफस्टाइल विच विल लास्ट फॉर एवर. परफेक्ट. तो ये जो शुगर फ्री ड्रिंक्स वगैरह भी आजकल बहुत सारा मार्केट्स में आ गए हैं Yes. कि शुगर फ्री कोक है, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री वो, आर दे एक्चुअली हेल्दी? और मुझे लगता है कि कहीं स्टीविया कंटेंट ज्यादा है तो अनहेल्दी है, क्या है? ओके, सो शुगर फ्री में सबसे पहले बात करते हैं, काफ़ी तरह के स्वीटनर्स होते हैं जो हमारे डाइट कोक में या फिर और बहुत सी सारी शुगर फ्री ड्रिंक्स में होते हैं. जो मेन है ना वो दैट इज, वन इज एस्पर्टेम, देन इज सैकरिन, देन इज सुक्रालोज. Right. तो ये सब जो यूजुअली हम लोग लेते हैं, एंड वो होते हैं ना 0 कैलोरी, हाँ. 0 गिल्ट बिल्कुल. हाँ. एंड 0 शुगर. ये है अगेन मार्केटिंग गिमिक्स. Okay. तो वो जो जीरोज है ना, तो दैट इज 0 हेल्थ ऑल्सो. अच्छा. तो वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज ये आपको 0 कैलोरी तो फॉर द टाइम बिंग देते हैं, बट इट विल लैंड यू इन अ बिगर ट्रबल लेटर. अच्छा. वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स, यंग गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, it messes up with your hormones. Oh. Yes, it messes up with your hormones, it messes up with your gut completely. एक और सबसे बड़ी बात जिस वजह से हम उसको लेते हैं कि शुगर हम अवॉइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू लैंड अप, आप और ज्यादा शुगर क्रेविंग करने लग जाते हो. Correct. सो ये जो भी शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं, यू हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड देम. अब मुझे सब पूछते हैं तो मैम हम फिर क्या करें, व्हाट इज द सोल्यूशन? मॉडरेशन में. नहीं, इसका तो मॉडरेशन भी नहीं है. सो कम्प्लीटली अवॉइड ऑल दिस. देर इज अ सेफ लिमिट. आप जब भी इनका पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है व्हेनेवर यू गो द रिसर्च कि एक सेफ लिमिट है ये लेने की. तो सेफ तो है बट हेल्दी बिल्कुल नहीं है ये. सो इसलिए इसको अगर दूर ही रहो तो ठीक है. इसकी जगह यू कैन डू सर्टन स्वैप्स. स्वैप्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हो घर पे, आप नेचुरली स्वीटेंड जो हमारा कोकोनट वाटर है वो आप ले सकते हो. उसके अलावा आप फ्रूट ब्लेंडेड ड्रिंक्स ले सकते हो. हाँ. तो ऑरेंज ऑल्सो इन ड्रिंक्स इट टेस्ट रियली नाइस. यस, इवन वाटरमेलन. यस, अमेजिंग. सो वो चीज़ों का स्वीटनेस जो नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोज है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, तो उसकी जगह देन दिस स्वैप वी कैन डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको करना ही है तो जो स्टिविया है या मॉन्क फ्रूट शुगर है, दे आर स्टिल मच बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू आर शुगर फ्रीज. क्योंकि ये इसमें कोई एक्चुअली ये भी 0 कैलोरी है, बट दे आर हर्ब्स. सो बेसिकली दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. वो भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है. ओके, परफेक्ट. तो अच्छा, आजकल एक और बहुत ट्रेंड है मार्केट में एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर भी, अबाउट ओजेम्पिक एंड मोंजारो. यस, इसके बारे में कुछ बताओ. आदि सेफ और मतलब क्या है ये? ओजेम्पिक, मंजारो, विगोवी, सो ये सब आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं. सो यू नो व्हाट, ये सब ना कोई मैजिक शॉट्स नहीं है. हाँ. ये एक पर्पस के लिए ओरिजिनली बने थे. हाँ, बिकॉज पीपल आर लूजिंग वेट. यस. एंड मतलब ड्रास्टिकल वेट लॉस हो रहा है. यस, और देख के तो अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, और यही इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग है. हाँ. क्योंकि उसका हुआ तो मम्मा मेरे को भी कराना है. एग्जैक्टली. हाँ. सो दैट इज व्हाट. सो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज हाँ. कि ओरिजिनली ये किसी और चीज के लिए बने थे. अच्छा. ये जो इंजेक्शंस जो हैं या जो भी मेडिसिन ड्रग्स हैं, these were actually made to help the people with type 2 diabetes Okay. and who have morbid obesity. जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, morbid obesity से मेरा मतलब है जिनका BMI 35-40 से above है, प्लस वो uncontrolled diabetes है उसको, वो उस कॉम्बिनेशन में हम लोग the treating doctor decides कि whether it's an ideal client for these things. Okay. बट इट इज नॉट फॉर द पीपल जिसकी शादी है या जिसको एक शादी अटेंड करनी है और इसको 2-3 kg लूज करना है. सो देयर इज अ डिफरेंस कि हमें इस चीज को किस चीज के लिए यूज करना है. तो लोग इतने इसके पीछे पागल क्यों हैं? हाँ. वो इसलिए पीपल आर मैड अबाउट दीज बिकॉज ये बहुत फास्ट रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है. मतलब एग्जैक्टली ड्रास्टिक. एग्जैक्टली बहुत फास्ट रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है और इस पे कोई एफर्ट भी नहीं लगता. इट इज ऑल अबाउट मनी. हाँ, इट्स ऑल अबाउट मनी. तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, जो हुएवर कैन अफोर्ड वो कर रहे हैं. बट यहाँ पर अफोर्ड की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि आपको उसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एग्जैक्टली. सो वी हैव कम अक्रॉस रीसेंट स्टडीज जो बता रही हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग तो था ही, हाँ, उसके साथ साथ स्टमक पैरालिसिस. यस. सो दैट इज हैपनिंग. हाँ. तो- और आई हैव आल्सो हर्ड एंड रेड दैट Ozempic एज अ ब्रांड जो कंपनी है उसके ऊपर इतने लॉ सूट्स हो गए दैट दे कुड लिक्विडिफाई, लाइक कंपनी बंद हो सकती है, इतने लॉ सूट्स हैं. या बिकॉज सी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स अब दिख रहे हैं. सो इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि स्टमक पैरालिसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो ये सब कुछ होने लग जाता है. Right. और पता नहीं, शायद आई हैव रेड दैट ये जब तक आप तो ले रहे हो इंजेक्शंस तब तक ही आपको वो वेट लॉस भी दिख रहा है. एंड अच्छा. आफ्टर यू जस्ट स्टॉप टेकिंग दीज इंजेक्शंस, उसके बाद में क्या होता है वी डोंट नो. इट ऑल डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट कि उसको किस तरह से कैसे रिजल्ट करना है, और उसके बाद उसके रेपरकशंस दैट ओनली टाइम विल टेल. तो क्या हम रेडी हैं अपनी लाइफ को इतना रिस्क में डालने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 2-3 kgs? तो फिर आपके हिसाब से ये जो मोंजारो, वाइगोवी, Ozempic किसको लेना चाहिए? आप रेकमेंड क्या करते हो? See, the doctor, the treating physician is the better judge, but what I tell you is, मैं तो तभी बोलूँगी कि मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं who inquire about कि मैम अगर हम वो इंजेक्शन लगवा लें. It is not that easy. मैं सिर्फ उनको बोलूँगी जिन लोगों में वेट लॉस एक लाइफ सेविंग चीज़ हाँ. बन सकती है. ओके. सिर्फ उन लोगों में हम लोग ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके. अदरवाइज देर इज़ नो नीड फॉर ऑल दीज इंजेक्शंस. अगर आपको स्लिम ही होना है ना तो आपको ये इंजेक्शंस, ड्रग्स कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट नीड डिसिप्लिन, दैट्स इट. बिल्कुल. और वही है मेन. वही अगर है हमारी लाइफ में तो हमें और कुछ नहीं चाहिए. और एक और बात, ये अकेले इंजेक्शंस भी कुछ नहीं करेंगे. अच्छा. ये इंजेक्शंस ले लिए और बाकी आप चाहे कुलचा पूरी खा रहे हो तो नहीं होगा. नहीं होगा. उसकी दैट इज ऑल्सो नॉट अ सोलो सोल्यूशन. यू विल हैव टू गो हैंड इन हैंड विद अदर लाइफस्टाइल चेंजेस, अदर डाइटरी मॉडिफिकेशंस, वर्कआउट वो आपको करना ही पड़ेगा फिर भी. बिल्कुल. तो व्हाई नॉट ट्राई दैट बिफोर? वो पहले कर लेते हैं. अच्छा, मुझे ऐसा है कि मिथ है और ऐसे लोग बोलते भी हैं बहुत बार कि जितनी भी हम डाइट्स फॉलो करें, नो मैटर किसी भी तरह की डाइट है, किसी भी तरह का वर्कआउट है, तो वो जो वेट है वो बाउंस बैक क्यों कर जाता है? यस, सो काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास ये चीज़ लेके कि मैम हमने ना 2 साल पहले भी डाइट करी थी, वी लॉस्ट अराउंड 10 kgs एंड हाँ. जैसे ही हमने वो 3 महीने के बाद छोड़ी, सो विद इन अ मंथ वो डबल होके Bounce वापस आ गया. हाँ. So, see, all those diets that you did might be was a temporary fix. Diet वो होनी चाहिए जो आपका fat loss करे. I repeat, जो आपका fat loss करे, Okay. weight loss नहीं करे. There is a difference. Weight or the number on your scale tells you only about your weight. आपको नहीं पता कि वो डाइट करने से आपका वाटर लॉस हुआ, मसल लॉस हुआ या फैट लॉस भी हुआ. करेक्ट. सो करना क्या है? करना ये है कि हमें फैट लॉस करना है. वो कैसे होगा? गेट योर बॉडी कॉम्पोजिशन डन. अपना बॉडी, एक्चुअली आपकी बॉडी किस चीज़ की बनी है, हाउ मच मसल्स, हाउ मच फैट, हाउ मच वाटर. सो ऑल द क्लाइंट्स हु आर एसोसिएटेड विद मी नो हाउ इट इज़ डन. सो वो करते हैं. देन इट इज़ ट्रांसपेरेंट बिटवीन यू एंड द क्लाइंट दैट हाउ मच फैट इज़ गोइंग. और फैट ना कभी ओवरनाइट आती नहीं है, सालों से हम लेके आ रहे हैं उसको अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स से. सो वो सालों से आई फैट ओवरनाइट चली गई तो दैट इज नॉट फैट. वो फैट नहीं गई, वो आपका सिर्फ वाटर लॉस हुआ, मसल लॉस हुआ. यू फेल्ट हैप्पी बिकॉज आपका नंबर ऑन द स्केल कम हो गया. एग्जैक्टली. हाँ, इतना कोई सोचता ही नहीं है. इतना अगर हमारे वेइंग स्केल पे हम ठीक है तो हम ठीक है. राइट, वही चीज है. बट उस चीज को हमने कैसे ठीक करना है, हमने फैट लॉस करना है, वो कैसे होता है?
अगेन वेरी सिंपल होममेड मील्स जो हम लेते हैं, गेट इट डिजाइंड बाय अ क्वालिफाइड डाइटिशियन, अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन हु कैन हेल्प यू विद इट। आपके रूटीन में ही कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हम करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट नीड नॉट बी एन एलिमिनेशन डाइट। राइट। तो वो उसको आप प्रॉपरली हर चीज़ को लो, एक सर्टन टाइम पर एक सर्टन फूड कॉम्बिनेशंस के साथ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो होता है फैट लॉस, और वो कभी भी जो ड्रास्टिक चला जाए ना, वो फैट लॉस था ही नहीं, तो इसीलिए वो बाउंस बैक हो जाता है। सो जो लोग फैट लॉस करते हैं, वो जब वो छोड़ भी देते हैं, अगर वो उस लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, देयर वेट विल नेवर बाउंस बैक। ओके, परफेक्ट। तो हमने इतनी सारी डिस्कशन करी डाइट के बारे में और अलग अलग तरह के Yes. खाने एंड डिसिप्लिन। तो मुझे क्रक्स में एक चीज बताओ, कोई एक चीज हम करें और हम सब फिट हो जाएं, हम सब हेल्दी हो जाए। ऐसा कोई रामबाण बताऊं मैं आपको? बिल्कुल, एक बता दो कुछ यार, जो हम कर सके सब लोगों को। देखो ये चीज हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, आई वांट टू लूज वेट। तो एक चीज बता दो। ऐसा कुछ नहीं है, बट या अगर एक लास्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर सकते हो तो वो है शुगर। ओके, शुगर इन बोथ फॉर्म्स, विजिबल एंड द हिडन फॉर्म। राइट। विजिबल द वाइट शुगर दैट वी यूज, द हिडन शुगर जो हमारे पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में जाती है। हाँ, तो उस चीज़ को अगर हम जीरो कर लें, सिर्फ एक बात अगर आप मेरी मान लो कि आप शुगर को जीरो कर दो, अच्छा। तो आपकी बॉडी से जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगी, आपकी जो फैट स्टोरेज फ्यूल अप कर रही है Right. शुगर, वो ठीक हो जाएगी। और शुगर आपकी बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक भी करती है। राइट। सो फैट स्टोरेज करती है, इंसुलिन स्पाइक करती है, ये आपकी रादर क्रेविंग्स को और बढ़ाती है। आप जितना ज़्यादा शुगर लेने लग जाते हो, आपको और ज़्यादा क्रेव होने लग जाता है। एंड साइलेंटली आपकी हर एक ऑर्गन के लिए ये बहुत डेंजरस है, बीट योर किडनीज, लिवर्स, हार्ट, एनीथिंग। ओके, सो शुगर इज वन थिंग जो मैं कहूँगी, अगर आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में से ये शुगर निकाल दो। चीज केक नहीं खाना। घर पे बना के खा लो विद बेटर ऑल्टरनेटिव। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शिवांगी। इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इसके बाद, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? The clinic is Meal Minds Diet Clinic by Shivangi Khanna. So it's in Medical Enclave in Amritsar near Trillium. तो बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, वो कैप्शन में मेंशन है। अपनी अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल मत भूलना, और इनको फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे। एंड डू DM इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स। एंड थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड थैंक यू शिवांगी फॉर कमिंग। Thank you so much for having me here. It was really, really, really amazing.